So hello students, today we will discuss about the further concept of force and law of motion. In previous concept we have discussed up to second law of motion, and today we will complete the chapter with the conservation of law of momentum. And in today's class we will also solve the numericals that is related to this chapter, and you will be able to make you perfect for solving the numericals that is related to force and law of motion chapter. Even then, after solving the numericals, if you are facing any problem, here will be a WhatsApp number on your screen. You may note down that number. Just send me the problem. I will try to solve your all problems. But before doing this all things, you have to do one more thing. While you are watching this video, you must have pen and register so that you will note down all the important things whatever is being spoken by me. So hello students, today we will discuss about the force and law of motion part 2. In part 1 we had discussed up to Newton's second law of motion. That has been explained like this कि force is directly proportional to rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसके कारण उसकी स्पीड में चेंजिंग आ जाती है, तो इसका मतलब अगर स्पीड में चेंजिंग आई है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम इज नथिंग बट द मेजर्स ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आई है, तो कहीं ना कहीं तो कोई फोर्स लगाया गया होगा ना. तो वही बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p1 minus p2 upon t, that is equal to directly proportional to f. So that has been mentioned here कि f is directly proportional to p1 minus p2 upon t. Now it will also work on the applications of the Newton's second law of motion. Here are many types of questions which are coming, that a cricket player while catching a ball moves his hand to the back direction or in backward direction, as well as in the athletic meets the athletes jumps over a mat or a heap of sand. Why? This type of questions in coming in the examination. So whenever this type of questions in coming in the examination, you can write it down in the way कि while a cricket player catching the ball, he moves his hand to the backward direction so that the time period will be increased. Because as more as the time period will be increased, the effect of force या impact of force on the hand will decrease, and due to this the cricket player won't hurt by that ball. So why it is being happened? Because as soon as the time period will be increases, the effect of force will be decreases. उसमें क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन अगर टाइम पीरियड आपका जितना कम होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड कम होगा, फोर्स का इंपैक्ट उतना ज्यादा ही पड़ जाएगा. जैसे कि आपने बॉल अगर कहीं पे मारी और उसने अचानक कैच किया और उसने हाथ को बैक पे नहीं ले गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्टली इट विल हिट ऑन द हैंड, एंड द force which is being applied by the moving ball, for which the momentum will be high, will directly impact on the hand, and maybe the player can hurt by this. So this type of question in coming in the examination, as that can be written by you in the same way. तो मुझे समझ में आ गया होगा. मेन मुद्दा ये है कि जब भी किसी एप्लीकेशन की बात आती है तो अपने बस एक चीज समझनी है कि जैसे ही आप टाइम पीरियड इंक्रीज करते हो, मेन मुद्दा क्या होता है, टाइम पीरियड को इंक्रीज करना. जैसे कि एथलीट्स होता है, और एथलीट्स जैसे ही हीप के ऊपर जंप मारता है, मैट के ऊपर जंप करता है, तो अर्थ के साथ कनेक्शन का जो उसका टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, इट विल इंक्रीज. एंड एज सून एज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड विल इंक्रीज, द इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन दैट athletes will going to be decreased, and that's why it won't hurt by this jumping. So these type of applications on Newton's second law of motion is working. We must understand that one. That's why I had explained this by this formula, so that you will be able to write down in the examination time. We must write down about the time duration.
as soon as the time, as more as the time duration will be increased, the impact of the force will be decreased, and on the basis of this concept these all applications has been made. So now we will discuss about Newton's first law from mathematical expression of second law. This question has come many times in the examination, that derive the Newton's first law या prove the Newton's first law from the mathematical expression of second law. तो we are considering कि let an object, हम इसे कैसे समझेंगे, तो we will understand now. Hello students. तो अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डिराइव द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ, या फिर एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ. क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू डू दिस, लेकिन ये बहुत इजी है. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ पे फोकस करना है. तो सबसे पहले हम एक चीज उसमें लिखेंगे, सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन है, प्लीज इसके नोट्स बनाते हुए चलना. तो सोल्यूशन करने से हमने पहले क्या मान लिया कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with the initial velocity, moving with a initial velocity u after t time it becomes v, it becomes v. तो भाई एक बात तो पक्की है ना कि अगर कोई स्पीड v से u से v हुई है तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा भाई. आप अगर कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, एंड द स्पीड इज इंक्रीज और स्पीड इज डिक्रीज, इट मींस इफ देयर इज अ चेंज इन स्पीड देन सर्टेनली एक्सेलरेशन हैज वर्क हियर. और ये कब हुआ होगा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो आपने लगाया होगा ना. तो व्हाट इज द, सो आप यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम expression of Newton's second law, Newton's second law. अब Newton's second law को we have derived before few minutes. Yeah, in previous lecture actually we have derived कि F is equal to m into a. That has been derived by us. So we can write it down also. F is equal to m into a can be written as v minus u upon t. That can be written here, or we can write it down f into t, that is equal to mv minus mu. What we are doing, this t has been multiplied here, now it will be written as mv minus mu. So ft is equal to mv minus fmu. अब listen one thing, क्योंकि हमें करना क्या है, बात समझना पहले, मकसद क्या है, व्हाट इज आवर एम. आवर एम इज टू डिराइव और फाइंड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ. नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ इज दैट, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever an object is in motion it will remain in motion, and if the object is in stationary position it will remain in stationary position unless or until the external force is going to be applied on this. जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ड्यू टू द इनर्शिया. एक इनर्शिया होता था जिसके कारण ऐसा होता था. तो यानी हमें ये दिखाना है कि अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया गया, तो बाहरी फोर्स नहीं लगाया गया का मतलब क्या है कि F कैसा हो गया, जीरो. इट मींस इफ F इज इक्वल टू जीरो, अगर F जीरो हो जाता है तो ये जीरो, तो Ft टोटली जीरो, तो mv विल बी इक्वल टू mu. यानी हम क्या कह सकते हैं, देन mu is equal to what, mv. m will be cancelled out by m, so u will be equal to v. It means if there is no force
If means if there is no force or no force is being applied, so the initial velocity will be equal to final velocity. It means the object will move in a constant speed in the duration of this time. तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा. इट विल मूव इन कांस्टेंट स्पीड. इट मींस इफ u will be 0, it means if the object is in rest, then v will be also 0. So object will be, if the object is in rest, so it will remain in rest if the external force has not been applied. So that has been derived here, proved. Many times it is being asked to prove from the mathematical expression of second law of motion, the Newton's first law. Yeah, object is in rest, so it will remain in rest. So that can be derived by this. I hope you have understood this one, and it is very important to you. After that, we will solve few numericals that will be explained with the help of this concept. So, bhai, we are going to discuss about the numerical that is related to Newton's second law of motion. तो आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. यानी क्या हुआ, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, 5 सेकेंड में जब हमने उसमें जिसका मास 4 kg था कोई फोर्स लगाया जिसके कारण उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 हो गई. तो कौन सा फोर्स आपने लगाया होगा भाई? विदाउट अप्लाइंग द फोर्स यू कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट ना. तो इट मींस फोर्स हैज बीन अप्लाइड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब द वैल्यू ऑफ द फोर्स. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सॉल्यूशन. तो whenever this type of question are coming, we don't need to be afraid of the numericals. What you have to do very first note down all the things whatever has been given in the question. तो अब अगर यहां पर आप देखिए तो व्हाट इज दिस, 4 kg है ना मास हुआ, तो मास इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू 4 kg. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे दैट विल बी मोर बेटर. आफ्टर दैट पहली स्पीड ये है और फिर स्पीड इतनी हो गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u which is 10 meter per second. After that final velocity, then final velocity is equal to v which is equal to 20 meter per second. It is the final velocity. After finding the initial velocity and final velocity, time has been also given. Then time is equal to 5 seconds. These all things will you write, and after that what you have to find out, force F. Then you will write down here force is equal to mass into acceleration. Mass has been given but the acceleration has not been given, so here is no need to afraid of this. M will remain m because that has been given. The value of a will be written as v minus u upon t, because earlier we have understand that a is equal to v minus u upon t. Now put the values, everything has been mentioned here now. So this is m is what, 4, v is what, 20 minus 10 upon time is 5 seconds. Now directly it will be 4 multiple 10 upon 5. 5 ones are 5 twos also. This is what, 8 Newton. Sir, why 8 Newton? Why 8 Newton, sir? Because the unit of force is Newton. So 8 Newton, this is the answer. So in the same way you will try to solve the numericals. Even then if you are facing the problem, WhatsApp number will be given on the screen. Now next term is impulse. Next term is, now we are going to learn about the impulse. This is impulse. So impulse is nothing but the total impact of the force. Impulse क्या होता है, लिख लेना आप यहां पर कि impulse is nothing but the total impact of the force which is equal to change of momentum. यानी क्या है भाई, जितना मोमेंटम में चेंज हुआ है
जितना मोमेंटम में चेंज हुआ है वही इंपल्स होता है। और ये कैसे आता है भाई, फोर्स का जितना भी इंपैक्ट है उसके इक्वल होगा। तो इंपैक्ट क्या, इंपल्स क्या हो गया, इंपल्स इज नथिंग बट द टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंपल्स को हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे। यहां पर हमें पहले से पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए होता है। F को तो आपने F ही रख लिया, m को m रख लिया, पहले ही बताया है v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। बार बार बता चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं स्पीड से। तो दिस इज F इंटू टी इज इक्वल टू mv माइनस mu। पहले ही बताया जा चुका है कि ft को तो ft रखते हैं, दिस इज p1 माइनस p2 एंड p1 माइनस p2 इज व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ft इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि यही हमारा इंपल्स होगा, यानी इंपल्स इज इक्वल टू f इंटू टी, फोर्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम p1 माइनस p2 और यू में से p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंपल्स। बोर्ड में शायद नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एक नॉलेज की चीज थी, दैट्स व्हाई आई हैड गिवन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस क्वेश्चन। एफ हैज बीन गिवन, थोड़ा जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन आपको गिवन है, एम इज इक्वल टू 550 केजी आपको गिवन है। आपसे कह रहा है आप एक्सेलरेशन निकाल दो, आपसे कह रहा है कि आप वेलोसिटी बताओ जितनी अटेन करेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, अटेन करेगा फाइनल वेलोसिटी। स्टेशनरी पोजीशन में था, यानी u इज इक्वल टू 0 पहले ही गिवन है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फटाक से सॉल्व करना है। सबसे पहले ए की बात करेंगे, मुझे पता है f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो फाइनली a इज इक्वल टू हमें पता हो गया f अपॉन m होता है। f इज 200 न्यूटन अपॉन m इज 50, डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया है। आफ्टर फाइंडिंग द ए वी आर सपोज टू फाइंड आउट v। मुझे अच्छे से फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0 प्लस द वैल्यू ऑफ a इज 4 into the duration of time was 2 seconds. That has not been mentioned. Please mention it here also. Time is equal to 2 seconds. You have to write down properly that FORC force is equal to 200, F is equal to 200 Newton. So then this is what V is equal to 4 to the 8 meter per second. So this is the way that how to do the numerical which is belonging to this one. After that we are going to learn about Newton's third law of motion. Now it's time to understand about the Newton's third law of motion. First law has been understand, second law has been understand. Now it's time to understand about the Newton's third law. But before understanding about the Newton's third law, कुछ इंसिडेंट्स को समझते हैं जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर हमें समझ में आते हैं। हम उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा एक चीज को समझो कि whenever two persons are moving in an opposite direction, दो पर्सन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और अचानक कोलाइड हो जाते हैं। ठीक है, द कोलिजन ऑफ टू मेंस हु आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम उसके बारे में बात करें तो एज सुन एज दे विल कोलाइड टू ईच अदर, द बोथ मैन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स और दे बोथ विल बी हर्ट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब, और इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज को और देखें, फिर सारी चीजों को एक साथ समराइज करके बताते हैं। फिर इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम लें तो अगर हम जैसे रोड पर चल रहे होते हैं तो आप इस चीज को देखोगे कि हम जब चल रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी चीज को पीछे की ओर पुश भी कर रहे होते हैं, कि आप जैसे आगे की ओर जाते हो तो आप अर्थ को पीछे की ओर पुश करते हो। इस चीज को आप ऐसे तो नहीं फील कर पाओगे, लेकिन आप इसको ऐसे मानो कि एक सैंडी आपका फ्लोर है, फ्लोर आपका स्मूथ है, बहुत टाइल्स लगे हुए हैं उस फ्लोर पे। अब आप उसमें चलने की कोशिश करो तो आप देखना कि आप बहुत मुश्किल होगी आपको चलने पे। फिर आप क्या करते हो, उस पर आप एक मैट डाल देते हो। जब आप उसको रन कर रहे होते हो तो आप क्या देखते हो कि मैट आपकी बैक डायरेक्शन में जब आ जाती है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। इज इट हैपनिंग और नॉट, है ना। इसी तरह से एक और चीज होती है प्रोपल्शन ऑफ बोट। प्रोपल्शन ऑफ बोट का मतलब क्या है कि
जब भी आपने देखा होगा कि जब भी बोटमैन जो है बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए जब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसका ओर होता है, ओर से जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, व्हेन ही पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द ओर, क्या कहेंगे इसको चीज को, हम कहेंगे कि व्हेन द वाटर मैन इज पुशिंग द वाटर विद द ओर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन द car will be able to move in forward direction. It is being also happened. Same way the propulsion of rocket is being also happened. आपने देखा होगा कि whenever the rocket is going to be launched and as soon as it is ignited, a hot air in a huge amount is come out in the downward direction which push the rocket in the upward direction. तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो इन सारी चीजों को जब हमारे न्यूटन साहब ने देखा होगा तो ही हैज कंक्लूडेड वन थिंग कि व्हेनेवर, अब यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट Newton's third law of motion states that whenever an object is putting the force on a second object, whenever one object is pushing or putting the force on second object, then second object is also putting the equal force on the first object in opposite direction. ये न्यूटन थर्ड लॉ है, आप इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। इसको दूसरी लैंग्वेज में लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको प्रॉपर वे में लिखना एज इट हैज बीन टोल्ड अर्लियर। आफ्टर दैट द न्यू कॉन्सेप्ट इज दैट, ये समझ में आ गया होगा ना कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके एप्लीकेशन उसके आते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन में मैंने सारे बताए आपको, जैसे कोलिजन ऑफ टू पर्संस हु आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन हो गया, प्रोपल्सन ऑफ बोट हो गया, प्रोपल्सन ऑफ और रॉकेट हो गया। उसके बाद हमने एक चीज और बताई थी द पॉसिबिलिटीज ऑफ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी उसी के थ्रू ही होता है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस व्हिच आर यूज्ड हियर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ अ बोटमैन इज एबल टू सेल द बोट, कैसे कर पाती है, कैसे कर पाता है वो, तो उसमें आप ऐसे ही बताओगे कि व्हेन द बोट वाटरमैन या व्हेन द बोटमैन वाज व्हेन द बोटमैन is sailing the water, he pushes the water in backward direction with the help of oar, so that the water will push the boat in forward direction with the same force, and that's why the waterman is able, या boatman is able to sail the boat. I hope that you have understood, and in the same way you will be able to write down all the problem that is comes on the behalf of this. लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कोई कार है और एक दूसरी कार है, दोनों के अलग अलग मास हैं, एक 40 मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर सेकंड की पर आवर की स्पीड से जा रही थी और दूसरी जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, एंड बोथ हैड कोलाइड्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं, भिड़ जाती हैं, इंटरेक्शन हो जाता है उनके बीच में। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, जैसा मैंने अपनी स्टडी किया हुआ है कि जब भी कभी ऐसा होगा तो जो स्लो वाली कार होगी, जैसे ही वो उस पर फास्ट वाली कार भिड़ेगी जाके, तो द फोर्स विल बी अप्लाइड बाई द हाई स्पीड कार टू द लोअर स्पीड कार, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी फास्ट वाले की, स्लो वाले की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और फास्ट वाले की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाद वाली इस वाली ने जो ज्यादा स्पीड वाली कार थी उसने कम स्पीड वाली कार पे फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है उसने भी उस पर उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पहले दोनों कारें थी, अगर पहली कार का मोमेंटम निकालें और दूसरी कार का मोमेंटम निकालें, उसको प्लस कर दें, बाद में जब कोलाइड हुए तो मास में तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वेलोसिटी में फर्क पड़ गया, तो उस समय जो उसकी उन दोनों के मोमेंटम निकालो, अब वो जो बाद वाले दोनों मोमेंटम हैं उनको ऐड करो और जो पहले वाले दोनों मोमेंटम हैं उनको ऐड करो, तो जो आंसर आता है वो सेम आता है, रिजल्ट आता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब एक चीज यहां से क्लियर हो गई, जब हमने ये एग्जांपल दिया, थोड़ा सा भी अगर आपने विजुअलाइज किया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार फिर से इसको रिकैप्चुलेट करके देखना, हल्का सा रिपीट करना इस वीडियो को, तो आप इस चीज को समझ पाओगे
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और डिराइव इट, तो डिराइव करने को आएगा तो आई विल टेल द कंप्लीट डेरिवेशन, बट ओनली इफ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप टू दिस इट इज कमिंग, तो आप क्या बोलोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन which states that whenever two objects interacted or collide to each other, so the total momentum of these two objects will remain same. That will be conserved. It means हम दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, according to the law of conservation of the momentum, total momentum of the system of the object is conserved बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन और कोलिजन। ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे ऐसा होता है। तो हम इन्हीं कार और ट्रक का एग्जांपल ले लें, या हम ऐसा करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हल्का सा समझ लेते हैं, फिर इसको स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। तो आपने जो क्या किया, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करना है। सोल्यूशन, आई होप इट इज नॉट विजिबल, आई एम गोइंग टू मेक इट डार्कन। तो हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, एंड दे वर मूविंग विद द स्पीड u1 एंड u2। ये u1 और u2 स्पीड से चल रहे थे। ठीक है, अच्छा, अगर चल रहे होंगे तो इस समय इसका जो मोमेंटम होगा p1, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, m1 इंटू u1। ठीक है, तो पहले आप वो स्टेटमेंट लिख लेना, उसके बाद स्टार्ट करना। तो आप क्या लिखोगे, ये फिगर बना लोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेक्टेड लगेगा, तो उसमें सबसे पहले अट्रैक्टिंग लगेगा। अगर ये फिगर बना लोगे तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिंग लगेगा। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि लेट द टू ऑब्जेक्ट्स हुज मास वाज m1 एंड m2, मास वाज m1 एंड m2 वर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। आफ्टर कोलिजन इनमें क्या हो गया, कोलिजन हो गया, और ये क्या हो गए, कोलाइड हो गए। आफ्टर कोलिजन भाई मास वोंट बी इंटरचेंज्ड, मास तो चेंज नहीं होगा, मास वोंट बी चेंज्ड, बट मास अभी भी सेम रहेगा, ये m2 है, लेकिन वेलोसिटी विल बी चेंज। सो द न्यू वेलोसिटी विल बी v1 and v2. So what will be the statement that you will write down? The statement will be, let the two objects of mass m1 and m2 was moving with the initial velocity u1 and u2 respectively. After collision, their velocity become v1 and v2. After writing this statement, then you will write down total momentum before collision is equal to what, p1 plus p2, that will be m1 u1 plus m2 u2. Okay, this is the total momentum before collision. Now, but before writing these statement must be written, let the two objects and all. So total momentum after collision, that is m1 v1 plus m2 u2. That you have to prove that this one is equal to this one. अगर ये आपने प्रूव कर लिया तो you have derived this one. तो चलिए हम उसकी ओर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये बात पक्की है कि आप यहां पर लिखने वाले हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion, the force which is being applied on first one will be is equal to force which is being applied by the second one in opposite direction. So force applied by first object या फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू फोर्स, और माइनस लगा दो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड ऑब्जेक्ट in opposite direction, in opposite direction it will be written by you. तो force applied by object is equal to force applied by second object in opposite direction. यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इसका फोर्स इक्वल टू इसका फोर्स, एक फोर्स ये लगाएगा। भाई ऑब्वियस बात है, जब इस जैसे ही कोलाइड हुए तो इस ऑब्जेक्ट ने अगर इसमें F1 फोर्स लगाया होगा तो दिस ऑब्जेक्ट विल आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस F2। वैसे F2 होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस F2, एंड दीज टू फोर्स विल बी इक्वल। ये दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता ही है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आफ्टर दैट the second law of motion is explaining about that the force is directly proportional to that rate of change of momentum। तो obviously इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? rate of change of momentum। it means delta p upon t and that will be what? delta p upon t and that will be what? also delta p upon t। या आप इसको चाहो तो दूसरी लैंग्वेज में ले सकते हो m into a के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? m into a मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, और इसी तरह से इसके लिए भी हो जाएगा माइनस मास। अच्छा, इसका मास और इसका मास दोनों का मास सेम तो था नहीं, एक का m1 था एक का m2 था, तो ये m1 इंटू a हो गया और ये m2 इंटू, इसको a1 रख लेते हैं और इसको a2 रख लेते हैं। आई होप समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। आफ्टर दैट हम लोग क्या लिखेंगे? m1 तो m1 रहेगा और इस a1 को, बात समझना मेरी, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। पहले ये बंदा u1 की स्पीड से चल रहा था, अब ये बंदा v1 की स्पीड से चलने लगा, स्पीड में चेंजिंग आई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? v1 माइनस u1। तो ये हमारा हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t, क्योंकि टाइम पीरियड तो उतना ही लगा है। और इसी तरह से ये माइनस हो जाएगा m2 और ये हमारा हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t। आई होप यहां तक पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया। इसके बाद इतना नोट कर लो, तो उसके बाद ऊपर करते हैं और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, क्योंकि नीचे यार विजिबल नहीं होगा आपके लिए क्लियरली। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, t विल बी एलिमिनेटेड बाय t, क्योंकि आप इसलिए t डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। नाउ डायरेक्टली आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस ऑल। तो आपने इसका मल्टीप्लाई अंदर करने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाना है m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 इज इक्वल टू, इसी तरह से हम लोग इधर करेंगे तो माइनस अभी बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको कर लेते हैं, दैट विल बी माइनस m2v2 माइनस m2v2 एंड माइनस m2u2 m2u2। ठीक बात? so this is what m1 v1 minus m1 u1 is equal to, minus will be multiplied inside of that, so that will be minus m2 v2 plus m2 u2। ओके, नाउ करना क्या है याद करो कि उसमें क्या था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम था। अब इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी तो चलेगी, तो u वालों को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक va और ये वाला vb इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा फाइनली आ चुका है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। now you can observe here, now you can see
Now you can see here that this is m1 v1, what final momentum of first object, and this is the final momentum of the second object, m2 second object. So total momentum after collision, this is what total momentum after collision. So total momentum after collision is equal to total momentum before collision. Before collision. This is total momentum after collision is equal to total momentum before collision. That has been mentioned here. तो इससे हम कह सकते हैं कि whenever two objects are interacted to each other when they were moving, when two objects were moving and after collision the momentum will be conserved. Momentum में कोई changing नहीं आएगी. So the total momentum after collision will be equal to total momentum before collision. तो भाई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि हमें क्या करना है कि फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ गन. गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पता लगानी. जब गन को आप फायर करते हो तो होता क्या है कि एज सुन एज द बुलेट विल कम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द गन विल कम्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन. तो दिस कमिंग ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज रिक्वायरिंग. तो वो कह रहा है कि जब आप गन को फायर करते हो जिसका मास 5 kg है, गन का मास कितना है आपका, इसको डिफरेंट कलर से मेंशन करते हैं. गन का जो मास है वो 5 kg है और जो बुलेट है उसका मास 25 ग्राम है. अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ईच क्वांटिटी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एमकेएस सिस्टम, ईदर और एमकेएस सिस्टम और इन सीजीएस सिस्टम, यानी सेम सिस्टम मस्ट बी फॉलोड. ऐसा नहीं होगा कि एक चीज को आपने एमकेएस सिस्टम में रखा और दूसरी चीज को आपने सीजीएस सिस्टम में रख दिया. तो इफ इट इज 25 ग्राम एंड दिस इज व्हाट 5, तो देखो ये एमकेएस सिस्टम में, यानी यहाँ पे मास कितना है केजी में है, के फॉर किलो, और यहां पर ये सीजीएस सिस्टम में जी फॉर ग्राम. तो इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये बुलेट का मास हो गया और जब इसको फायर किया जाता है तो ये जो स्पीड एक्वायर करती है ये बुलेट वो कितनी करती है 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर कर रही है. अब आपको ये पता लगाना है कि गन की स्पीड क्या होगी. यदि जो भी चीज है कि हम कोलिजन के बाद के बारे में गिवन है, पहले के बारे में नहीं गिवन है. तो चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने मान लिया कि मास ऑफ गन इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 5 kg, मास ऑफ बुलेट is equal to m2 and that is equal to 25 gram. So 25 gram must be converted into kg. So for that you must multiply it by 10 to the power 3. That will be 10 to the power minus 3 will be multiplied and it turns to kg. Please घबराना नहीं, ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए, because there is 1000 gram in 1 kg. So in 1 gram there is 1 upon 1000 kg. 1 upon 1000 means 1 upon 10 to the power 3. If 10 to the power 3 will goes to numerator, that will be turns to 10 to the power minus 3. Now this is 25 into 10 to the power minus 3 kg. So it has been also converted into kg. After that the velocity of bullet has been given. Yani velocity of bullet after collision is equal to v1. ऐसे कर लेते हैं इसको, v1 और v2 मानते हैं. तो चूंकि गन को हमने m1 माना था तो यहां इसको बुलेट वाला है तो इसको v2 कर लेते हैं, उसको v1 कर लेंगे. तो दैट इज व्हाट 500 मीटर पर सेकेंड. नाउ वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर कोलिजन आपको निकालना है. तो आफ्टर कोलिजन ये हमें निकालना है, तो हमने इसका नाम रख दिया v1. दैट इज क्वेश्चन. ओके, हमें अच्छे से पता, प्लीज यहां पे एक स्टेटमेंट मेंशन कर लेना कि टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट
before collision is equal to total momentum of gun and bullet after collision according to the conservation of momentum. तो यहां पर पहले वाला जो मोमेंटम होगा उसका नाम क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2. गेटिंग ना, गन बुलेट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. गन बुलेट m1 is 5, u1 is 0 because before collision it was in stationary position, neither gun nor bullet was moving, plus m2 was 25 into 10 to the power, one thing more beta, it must be written as 2.5. It means 2.5 multiple 10 to the power minus 2. This is the conversion of standard form to kg. So it will be also 2.5 multiple 10 to the power minus 2. Now this is kg. And into u2 is again 0. And after collision it is, that is what, m1. m1 is mass of gun, that is 5. v1 we need to find it out. Plus m2 is what, 2.5 into 10 to the power minus 2. Into v2 has been given, I think 500. 500 has been mentioned here. After that this whole will be turns to 0. This is 0 as well as this is 0. So this whole is 0. It is what, 5 into v1 is equal to. Now listen carefully. As soon as this 25 will be multiplied with this 5, this is 25 the 25, 5 the 7, 125. 125, and actually here is 2 zeros, so 1 zero will cut that decimal, so here will be single 0 into 10 to the power minus 2. I hope you are getting that. After that it is going to be in this side, so or you may shift that one, so that will be minus 5 into v1 is equal to, that will be 1250. This 10 to the power minus 2 can be written as 1 upon 100. 0 will be cancelled out by 0. So now this 0 will cut this one, and here is the decimal. Now here is v1 is equal to 12.5 upon minus 5. If you will cut it, that will be minus 5 2s are 10 and 2 5 25. 5 5s are 25. So answer is what? The gun will recoil with the speed of, you will write it down please. The gun will recoil with the speed of 2.5 meter per second in opposite direction of the bullet.